Assalamu alaikum, my dear students. This is class 9th, subject English, and the topic is the Tempest. We are going to do the language work at page number 40. There is a paragraph. After reading this paragraph, we have to complete the following, fill in the blanks. First of all, we will read this paragraph. Recycling can be defined as the collection and separation of the materials from the waste products and their subsequent reuse and processing to produce a marketable product. In other words, it is the use of material over and over again. Waste from homes and factories contain valuable things which can be recycled as plastic, paper, metal, biogas, and manure. Biogas is used as fuel for cooking. Paper and cardboard are made of pulpwood. For every ton of waste paper collected and recycled, 2 trees are saved. Recycling also saves energy and raw material. Aluminium uses a lot of energy. Every time you throw away an aluminum can, it is like throwing away the same amount of energy as in half a can of petrol. Recycling glasses means a fewer sandpits and limestone quarries are needed. As raw materials are becoming scarce and expensive, as air, land, and waste and water pollution are posing threat to mankind, it becomes increasingly necessary to recycle. Recycling plastic bottles saves 60% energy needed to make new bottles, and 70% can be saved in making new steel from scrap. Recycling of 1 ton of aluminum reduces emission of aluminum fluoride, fluoride into by 35 kg. Dear students, now this is about the whole paragraph is about the recycling. How we can recycle the waste papers, the waste plastics, and the cardboards, the metals, the biogas, and the manure. Now, after reading this, you understand that what are the benefits of recycling. Now you are going to we have understand this paragraph. Now we will do this. Number 1, using the materials repeatedly in different forms is called. जो हम बार बार अगर हमने पेपर इस्तेमाल किया तो फिर हम उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, दूसरे फॉर्म में फिर इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, उसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं। रिसाइकलिंग कहते हैं हम जिसको हम बार बार रिसाइकल करते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप देखते हैं हमारे गांव महलों में जो रद्दी वाले आते हैं, जो ये पुरानी चीज़ लेते हैं, प्लास्टिक लेते हैं, टीन लेते हैं, लोहा लेते हैं और ये पेपर वगैरह लेते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारा माहौल भी साफ रहता है, तो हमारे और हमको मटेरियल, रॉ मटेरियल भी मिलता है। तो इसी तरह सेकेंड है ट्रीज आर सेव्ड बाय रिसाइकलिंग डैश डैश। तो इन ये जो दरख्तों को हम कैसे बचा सकते हैं? when we will recycling the paper, when we will recycle the waste paper, we can save the trees. तो इसमें आएगा trees are saved by recycling waste paper। जो हमें पेपर ज़ाया होता है, अगर हम एक दिन भर देखते हैं, पुराने अखबार होते हैं, कापियाँ होती हैं, पुरानी किताबें भी कभी कभी होती हैं, तो इनको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग वेस्ट से हम इन दरख्तों को बचा सकते हैं। जब हम दरख्त को बचाएंगे तो हम अपने माहौल को बचाएंगे। नंबर 3 इज ये रिसाइकलिंग आल्सो सेव्स। तो रिसाइकलिंग से हमें क्या बचता है? तो रिसाइकलिंग से हमें एनर्जी बचता है और रॉ मटेरियल जो हमें एक बार इस्तेमाल करना होता है, तो अगर हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह हमें एनर्जी भी बच जाएगी और ये रॉ मटेरियल भी। और चौथा है प्रेजेंस ऑफ एनी अनडिजायरेबल एंड कंटेमिनेटेड सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट कॉल्ड। और जो भी इससे पोल्यूशन कम करना होता है या कम करना होगा, तो हम इससे भी पोल्यूशन में कमी भी ला सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ एनी अनडिजायरेबल कंटेनेबल, ये जो अनकंटेनेबल कंटेमिनेटेड सब्सटेंस जो माहौल में मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एनवायरनमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। जैसे हम एयर पोल्यूशन देखते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन देखते हैं, वाटर पोल्यूशन देखते हैं। तो अगर हम 5वां देखेंगे यहाँ, half of a can of petrol can be saved by reusing
अगर हम वो कौन सी चीज़ है जिससे हम पेट्रोल का एक हाफ कैन बचा सकते हैं। अगर हम रिसाइकल किस चीज़ का करेंगे, अगर हम एलुमिनियम कैन का ही, अगर हमने एलुमिनियम कैन लाया तो इसे हम फिर बार बार इस्तेमाल करते हैं, या हमारे पास प्लास्टिक बोतल को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, इनको रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे, तो इस तरह हमें बहुत से रॉ मटेरियल और एनर्जी भी बच जाएगी। इससे हमारा माहौल भी साफ रह जाएगा और हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी ठीक हो जाएगी, और इससे इनकी जो कीमतें हैं वो भी बढ़ने से बचेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक्स।